So today, the topic that the masters have chosen for you is acceptance. I know I've talked about acceptance in midst of many other things, but I would like to again discuss acceptance because the masters want it, there must be a reason behind it. So, what is this acceptance? We have a feeling that as we grow spiritually, we grow with gifts. We become more psychic. We can teleport things. We can see the past and the future. These are the general things that we have an idea about, that this is what spiritual growth is. But what is actual spiritual growth? Actual spiritual growth comes with acceptance. And first of all, it is the acceptance of yourself totally and completely. Every aspect of your being, you accept yourself in complete totality, not resisting any part of you, not thinking that this part of you, my nose is not good enough, my hair is not good enough, my skin is not good enough, my looks are not good enough. This is the way we start ourselves. From teenage, we start criticizing our body looks, our features, our skin, our structure, everything we start criticizing. We have no acceptance. Then we start criticizing our gifts, our talents as we come into the competitive part of ourselves when we go to schools, colleges. We start comparing our mental abilities, our physical abilities, our abilities for concentration, our abilities for memorizing. Everything we start comparing with others. And we always reject ourselves. We do not generally find anything good with ourselves. Most of the time, we are degrading ourselves by telling that अरे ये तो उसका अच्छा है वो तो उसका अच्छा है इसका तो वो अच्छा है ऑलवेज इट इज द अदर पर्सन वो अलग ही कोई है वो डिफरेंट ही कोई है जो कि अच्छा है आप हो कि जो अच्छे नहीं हो दिस इज द वे वी टॉक टू आवरसेल्फ हम हमेशा अपने आप से इस तरह से बातें करते हैं जिसमें हमको लगता नहीं है कि हम अपने आप से प्यार करते हैं सो आप देखते हैं कि फ्रॉम चाइल्डहुड a child comes into this world full of joy, full of happiness, full of acceptance. But society हमको क्या करती है? When we are doing something, when we are wearing a dress, in childhood only they start comparing. Parents compare करते हैं, friends compare. अरे वो that person is looking so pretty, and we start having definitions of good looks. We start having definitions of qualities. We start having definitions of being good. कि ये बच्ची हमेशा चुपचाप रहती है, कभी जवाब नहीं देती है, कभी कुछ उल्टा मुंह पे नहीं बोलती है, कितनी अच्छी प्यारी बच्ची है। दैट वेरी मिनट क्या होता है, पास में जितने बच्चे रहते हैं उनका एक कंडीशनिंग हो जाता है कि सी हमको चुप रहना चाहिए, हमको जवाब नहीं देना चाहिए, हमको कुछ भी नहीं, अपनी ओपिनियंस नहीं शेयर करनी चाहिए, देन एवरीवन विल कॉल मी गुड। तो दिस आर ऑल कंडीशनिंग्स जो हमारे अंदर घुस जाती है, और ये कंडीशनिंग हमको और भी अपने आप से दूर ले जाती है, क्योंकि हमको एक्सेप्ट करने में अलाउ नहीं करते। वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स, द इनर कोर ऑफ आवरसेल्व्स, एंड विदाउट एक्सेप्टेंस यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ये एक्सेप्टेंस क्या चीज की है? इट इज नॉट ओनली अबाउट आवरसेल्व्स, इट्स अबाउट एवरीथिंग अबाउट आवरसेल्व्स। It is about the situation we are in. It is about the life path that we are in. It is about the financial situation we are in, the material situation, the emotional situation, the relationships, everything. सुबह से शाम तक हम इसको रेजिस्ट करते रहते हैं। सुबह से शाम तक हम बोलते रहते हैं कि we cannot accept this part of ourselves, we cannot accept this relationship, इतना खराब relationship मेरे life में है, I don't deserve this, I deserve much more. We resist the job we go to. हम बोलते हैं कि this is not what I wanted to do. This is not what I was meant to do. मेरे को कुछ और ही करना था, मेरे को कुछ और काम ही करना था. What do we do? Keep on resisting, keep on resisting, keep on resisting. And we never accept. अपने आप को accept नहीं करते हैं, अपने looks को नहीं accept करते, अपने talents को नहीं accept करते, अपने situations को नहीं accept करते, इस दुनिया को नहीं accept करते हैं। आप हमेशा देखिएगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक में कुछ ना कुछ जोक्स चलते रहते हैं। इट इज अबाउट योर वाइफ, इट्स अबाउट योर हस्बैंड, इट्स अबाउट सरदारजीज, इट्स अबाउट द वर्ल्ड, इट्स अबाउट पॉलिटिशियंस। हम क्या करते हैं? मॉर्निंग टू नाइट वी आर हिटिंग आउट एट अदर्स।
We are finding faults in others. We are making fun of others. We are all the time looking at others and trying to see what is it is there that is negative. क्यों? क्योंकि somewhere if we find something negative in a different person, it makes us feel good. It makes us accept ourselves better. ये अजीब चीज है, बट यही सच है कि हम दूसरे की कमियां देख के अपने आप को समृद्ध समझते हैं, अपने आप को खुश पाते हैं, अपने आप को अच्छा पाते हैं. तो इस तरह से अगर हम जिंदगी जीते हैं तो ये क्या जिंदगी है? इज ये दिस इज स्पिरिचुअलिटी? नो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिटी. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बेस कुछ चीजों पे बेस्ड होती है, कुछ क्वालिटीज पे बेस्ड होती है. एंड वन ऑफ दिस क्वालिटीज other than the beautiful qualities of honesty, which is very important, authenticity is a very strong quality of acceptance. Accepting ourselves and accepting others, accepting our situation, accepting the world, the universe as it is. और हम ये चीज करने से हमेशा, मतलब we don't do it, मतलब हम हमेशा इसको रेजिस्ट करते हैं. क्यों रेजिस्ट करते हैं? There are many reasons why we resist this. First of all is the conditioning. जैसे मैं आपको बोल रही थी, बचपन से हमारे अंदर कुछ conditionings आ जाते हैं. हमको बोला जाता है कि see, this relationship is perfect. Somewhere the wife is always silent and always serving the husband, and we are told that देखो ये कितनी अच्छी relationship है. तो हम सीखते हैं कि if one partner is silent, one partner is always serving others, this is a true relationship. हम अगर कभी देखते हैं कि कोई बच्चा किसी पेरेंट के अगेंस्ट कुछ बोलता नहीं, अपना ओपिनियन नहीं रखता है, एंड दैट चाइल्ड इज एक्सेप्टेड एज गुड, तो हम सीखते हैं, वहां से कंडीशनिंग सीखते हैं कि साइलेंट रहना ही इज द बेस्ट वे टू बी कॉल्ड गुड बाय अदर्स. तो दिस इज अ कंडीशनिंग. और कैसे कंडीशनिंग होते हैं कि द मोमेंट यू गेट मैरिड, this is a social conditioning that marriage will give you everything you wanted. A relationship will give you everything you wanted. And we start to expect such a lot of things from the relationship, from the marriage. क्यों? क्योंकि हमको society ने बोला है कि relationships means the moment you come close to someone and you start loving someone, everything in life becomes beautiful. The person accepts it totally, the person understands it totally, the person loves you unconditionally, and everything in your life is becoming beautiful. ऐसा होता है? नहीं होता है. ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि when two persons come together, first of all they are two very different individuals जिन्होंने अपने कंडीशनिंग के साथ, अपने बिलीफ सिस्टम्स के साथ, अपने लाइफ पाथ के साथ बड़े हुए हैं. एंड two persons to understand each other totally takes a long time. So how can marriage and relationship instantly give you joy, instantly give you happiness? ऐसा हो नहीं सकता है. एक रिलेशनशिप में आने के बाद बहुत दिन लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के टाइप को समझने में, एक दूसरे की खुशी को समझने में, एक दूसरे के मूड्स को समझने में. तो वो इमीडिएटली आपको हैप्पीनेस कैसे ला दे सकती है. और एक चीज जैसे मेरा भी था, एक कंडीशनिंग था कि when you are married in the patriarchal society, your husband is supposed to take care of everything. This is the general conditioning that every girl is brought up with. कि आप जैसे you are married, your husband is supposed to take care of your financial needs, emotional needs, mental needs, physical needs, everything. And when you don't get it, what happens? You go into deep trauma. कि ये तो नहीं है marriage. Marriage मतलब I was supposed to get gifts, I'm supposed to get luxuries, I'm supposed to be taken care of, I'm supposed to be honored, I'm supposed to be, my health, everything is supposed to be taken care of. ये कंडीशनिंग लेके हम एक मैरिज में, एक रिलेशनशिप में जाते हैं, पर ये मिलता नहीं है. तब क्या होता है? We start going into trauma, we start going into depression, we start going into pain because we cannot accept the relationship. क्योंकि हमको सोसाइटी ने ये बिलीफ सिस्टम्स देके भेजे हैं कि when you go into a marriage, especially in the patriarchal society, you are supposed to be taken care of. And a husband also thinks the same way. The wife who is coming, she is supposed to take care of all of his needs. She is supposed to be almost like a servant. अदासी की तरह उसके साथ रहना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उसकी हर नीड्स को समझना है, उसको पैम्पर करना है. This is the conditioning, this is the belief system that has been created, instilled, ingrained in us. So when two people come into a relationship,
I'm talking about relationship because this is the most important area of our life where we find the greatest trauma. We find trauma in jobs and everything. We'll discuss that also. But first I'm talking about relationship, क्योंकि इस relationship में क्या होता है कि हम लोग दोनों male and female will come to the relationship with preordained conditionings and belief systems instilled into us. ये belief system हमको सिखाते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए. And when we don't get life as we think we should be getting life, then pain starts. We go into trauma, depression, fights. We go into a lot of disagreements, misunderstanding, or finally it even ends in divorce or a betrayal or something else. क्यों होता है ये? First of all, because we have not been able to accept ourselves and our relationships. First of all, we have to understand that we as a human being cannot accept anyone else to make us happy. This is the first acceptance that we have to understand. We have to accept the fact that only you can make yourself happy. आप खुद ही अपने आप को खुश रख सकते हो, कोई और नहीं रख सकता है. आप हमेशा बोलते हो कि ये मेरे साथ बैठते हैं, ये मेरे साथ बात करते हैं, ये मेरे साथ रहते हैं तो हमको खुशी होती है, पर ऐसा नहीं है. आप मैक्सिमम टाइम दिन में 24 आवर्स में 20 आवर्स खुद के साथ रहते हो. आपने कुछ कंसीव कर लिया, कुछ आइडियाज अपने दिमाग में कंसीव कर लिया है कि जब ये मेरे से प्यार से बोलते हैं तो आई फील गुड इनसाइड. पर एक बात समझिए कि व्हाटएवर यू फील गुड इनसाइड अबाउट इज योर फीलिंग्स. ये आपने क्या दर्जा दिया है रिलेशनशिप को, आपने उस पर्सन को क्या वैल्यू दिया है, क्या इंपॉर्टेंस दिया है अपनी लाइफ पे, उस पर डिपेंड करता है व्हाट यू फील इनसाइड. इफ दैट पर्सन, यू वैल्यू दैट पर्सन वेरी मच, वो एक छोटा सा बात भी बोल जाता है, वी फील गुड. It is not the person who is making you feel good. It is your feelings about that person that you have stored inside. The greatness about that person that you have stored inside, that makes you feel happy. It is actually not the person making you happy. Everything in your life, जो भी आप करते हैं, जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप समझते हैं, सब अपने आप करते हैं. अपने आप को खुशी देने की या दुख देने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है. हम क्यों अपने आप को खुशी देते हैं? क्योंकि हम अपने आप को बोलते हैं कि ये पर्सन, दिस पर्सन लव्स मी. और इफ दैट पर्सन टेल्स यू समथिंग व्हिच इज व्हाट यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग, सपोज वो आपसे कुछ हार्शली बोल देते हैं, इमीडिएटली यू गो टू पेन, क्योंकि आप अपने आप को बोलते हो कि ये पर्सन डजंट लव मी, सी दैट पर्सन इज नॉट रेस्पेक्टिंग मी, दैट पर्सन इज नॉट लविंग मी. तो ये व्हाटएवर सेल्फ टॉक इज, इट इज यू आर डूइंग टू योरसेल्फ. आप खुद को समझा रहे हो कि ये पर्सन आपको प्यार करता है या प्यार नहीं करता है, ये आपको रेस्पेक्ट करता है या नहीं करता है. तो व्हाटएवर यू आर टेलिंग योरसेल्फ इज generating this feeling of love or hatred or pain or anxiety or depression, whatever. तो अगर इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि अरे ये पर्सन बहुत डिस्टर्ब है या बिजी है तो इसने ऐसे बोल दिया, it doesn't matter, I am happy. So you realize that very minute you are moving out of the conditionings of a belief system that a person or a relationship can make you happy. जैसे ही आप उस conditioning से निकल जाते हो, you yourself are capable of making yourself happy, because आपको ये बात समझ में आ जाती है कि that person is not responsible for my happiness, I am responsible for my happiness. ये responsibility की बात हमको बचपन से नहीं सिखाया जाता है. हमको ये conditioning दिया जाता है कि situations, persons, relationships will make you happy. So my dear friends, if you really want to accept life, if you really want to accept yourself, if you really want to invite happiness, joy, spirituality into your life, first of all अपने आप को accept कीजिए और ये conditionings को छोड़िए कि people, situations, any achievement, हम सोचते हैं कि हम अगर वो चीज अचीव कर लेते हैं, वो जॉब अचीव कर लेंगे, या वो सपोज वी आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, या हम कुछ एक काम करना चाहते हैं, सपोज हमको करना है कि एक वर्कशॉप करना है जिसमें 100 पीपल्स कम टू अस, तो हम सोचते हैं कि वो वर्कशॉप जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम खुश होंगे. ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज नॉट इन दिस वे दैट वी मूव थ्रू लाइफ. वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एवरी मिनट, कुछ हो कि नहीं हो, यू कैन बी हैप्पी. इट इज बिकॉज यू कैन एक्सेप्ट बीइंग विद योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर. हम ये नहीं करते, हम सारा दिन रेजिस्ट करते रहते हैं. What is this resistance? It is moving against the tide.
हमको जिंदगी किसी और तरफ ले जा रही है, हम क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग अगेंस्ट द टाइड। मतलब अगर एक नदी बह रही है, हम नदी के साथ बहते हैं तो कितने इजी बह जाते हैं। अगर हम नदी के उल्टा तरफ बहना स्टार्ट करते हैं, इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू इवन स्विम अपवर्ड्स। तो हम अगर सारा दिन रेजिस्टेंस में ही अपना टाइम निकाल देंगे, अपनी इमोशंस निकाल देंगे, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और ये रेजिस्टेंस क्यों आती है, क्योंकि हमारे में एक डिपेंडेंस होती है, एक डिपेंडेंस जो बचपन से सिखाई गई है कि वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स एंड वी हैव सर्टेन जजमेंट्स कि ऐसा होना चाहिए, दिस पर्सन should behave in this way, husband, wife, father, mother, siblings, मतलब friends, anyone, we have a certain preconditioned judgment कि इनको ऐसा behave करना चाहिए। तो हम इस जजमेंट्स में जब जाते हैं, हम जब इस कंडीशनिंग्स में जाते हैं, तो हमारे में एक रिजिडिटी आ जाती है। वी डोंट वांट टू चेंज बिकॉज हम ये प्री प्रोग्रामिंग लेके ही चलना चाहते हैं। तो दिस moving with this pre-programming, moving with this conditioning, moving with this dependence, moving with this judgments, क्या करता है, हमको rigid बना देती है। We are not ready to change, and without change a person cannot grow. Every moment the only thing that is constant in life is change. एक ही चीज हमारी जिंदगी में होती है जो कि हमेशा घटती रहती है, वो ये है कि बदलाव। हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव आता ही रहता है हमारी जिंदगी में। हम क्या करते हैं, हम हमेशा इसको रेजिस्ट करते हैं क्योंकि हमको बदलाव से डर लगता है, हमको बदलाव से दुख होता है, हमको लगता है बदलाव का मतलब है हमको फिर से कुछ ट्रॉमा मिलने वाली है, फिर से कोई दुख मिलने वाला है, फिर से हमको हमारी लाइफ में कुछ पेन आने वाला है। नो, बदलाव, चेंज इज ऑलवेज फॉर ग्रोथ। और हम आए हैं इस लाइफ में एज एज अ स्पिरिचुअल बीइंग living in a physical body. क्यों? Because we have come to learn certain experiences, certain qualities that will bring a great change in our emotional being, physical being, mental being. वो हमको क्या सिखाएगा, हमको तुम्हारे में certain qualities, certain strength of character ले आएगा जो हमको spiritually आगे बढ़ने में help करेगा। पर हम क्या करते हैं, all the time we are resisting, we are not in the flow। जैसे ही हम फ्लो के साथ नहीं मूव करते हैं, हम जैसे रेजिस्ट करते रहते हैं कि हमको ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, वी आर नॉट इन एक्सेप्टेंस। और जैसे ही हम एक्सेप्टेंस में नहीं होते हैं, रेजिस्टेंस में होते हैं, हमारे में हमेशा एक स्ट्रेस बनी रहती है। वी आर नॉट हैप्पी, वी आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ टर्मोइल, क्योंकि हमको लगता है कि ये ऐसा नहीं हो रहा चाहिए, ये ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, और ये ऐसा नहीं हो रहा है, so how can I be happy? The first state of acceptance is to surrender, to totally surrender to the fact that whatever you have in your life, in your physical body, in your mental body, in your emotional body, in your relationships, in your material world, in your job, in your projects, जो भी है आपके लाइफ में, आप अगर उसको completely एक्सेप्ट कर सकते हो, आप अगर ये एक्सेप्ट कर सकते हो कि मेरा लुक्स जैसा है वैसा ही मैंने चूज करके आई थी इस टाइम, बिकॉज दिस लुक वाज गोइंग टू टीच मी सर्टेन क्वालिटीज। सपोज अ पर्सन इज वेरी ब्यूटीफुल, यू मे थिंक कि उसका लाइफ तो बन गया, उसको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके पास तो इतनी सारी ब्यूटी है। दैट पर्सन मस्ट हैव ब्रॉट दैट ब्यूटी इनटू दिस लाइफ, किस लिए? क्योंकि उसको सीखना था कि ब्यूटी में क्या होता है। व्हेन यू आर ब्यूटीफुल यू attract a lot of people who are not sincere people, who come to you just for your looks, for your body, for your beauty. So that person जो इतना ब्यूटी लेके आया है, that person must have had an inner agenda of understanding कि लोग मेरे पास क्यों आते हैं, are they coming to me for my exterior self or do they really love me? ये सोल लेसन शायद वो लेके आए हैं कि उनकी ये सोल लेसन है जानना कि व्हाट रिलेशंस डू आई अट्रैक्ट, वो रिलेशनशिप्स मेरे ब्यूटी के लिए आ रहे हैं या मेरे इनर बीइंग के लिए, डू दे रियली केयर फॉर मी और दे आर ओनली कमिंग टू बी पार्ट ऑफ माय फिजिकल बॉडी। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसा एजेंडा है, ऐसा एजेंडा लेके ही सोल आती है। एंड इफ अ पर्सन हैज कम विद अ वेरी डिसेबल्ड बॉडी, a very
the unattractive body, as you call it, because no one is unattractive, my dear friends. Everyone is attractive in their own way. तो वो जो बॉडी लेके आए हैं उसका भी एक मकसद है. वो जानना चाहते हैं कि उस बॉडी में, उस लुक्स में सच में people love you. If they don't love you for your real being, they love you for your looks, they won't come to you. If they come to you, it means they truly and sincerely love you. ये कितना अच्छा एक फीलिंग है ना, कि आप जानते हैं कि you are not attractive. As people think attractiveness is, I'm emphasizing on that fact. You think in Indian society, especially if a girl's skin is dark, if a body is not of a particular height, that person is supposed not to be good enough. It may be a man also. If a man is very thin, if a man is very short, if a man is very dark, we think that person is not attractive. But suppose that person has come with the agenda कि जानने के लिए कि मेरे को सच में कौन चाहता है. If my looks is not attractive, जो मेरे पास आएगा वो मेरे दिल को चाहने के लिए आएगा, मेरे क्वालिटीज को चाहने के लिए आएगा, एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. आप उस एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं. So stop blaming yourself for not being good enough, not being beautiful enough, not being attractive enough. हर चीज जो हम देखते हैं, जिसको देख के हमको बाहर से कुछ और लगता है, उसके अंदर कुछ और ही होता है. हर पर्सन जिसको हम एनवी करते हैं, उनकी लाइफ में अगर आप डीपली जाते हैं, देखेंगे कुछ और ही है. मे बी दैट पर्सन इज इन अ वेरी डिप्रेसिंग स्टेट, बट बहुत ही ट्रॉमा में है, पर दैट पर्सन इज ट्राइंग एवरी मिनट टू बी ब्यूटीफुल, टू बी हेल्पफुल, टू बी काइंड. और आपको लगता है कि उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है. और अगर आप उसके लाइफ के अंदर जाते हो, इफ यू रियली अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू understand that person, you will see कि उसके लाइफ में कितनी challenges हैं, but that person is totally accepting themselves. They're totally in the flow. They're totally in the feeling of surrender कि I accept my situation as it is. और हमको सोचना है कि ये situation ऐसा है, हम अब क्या कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए. हमको इस सिचुएशन में जो भी मिला है, सपोज हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे, उन्होंने हमको पढ़ाई नहीं करवा सके. सपोज हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें हमें कुछ नहीं मिलता है. सपोज हम एक ऐसे जॉब में जाते हैं जहाँ पे हम जस्ट पैसा कमाने के लिए जाते हैं. तो अगर हम वो चीजों को लेके सोचते रहेंगे तो यू विल बी इन अ बिग ट्रॉमा. और अगर हम उस सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है, हमारे पापा ने हमको पढ़ाया नहीं, मे बी वी वांटेड टू लर्न कि विदाउट डिग्रीज आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हो. डिग्रीज इज नॉट इम्पोर्टेंट. शायद ये लाइफ चैलेंज अब लेके आए थे कि हमको ये सीखना है कि डिग्रीज आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मेक अ मार्क इन योर लाइफ. सपोज आपको ये सीखना था कि रिलेशनशिप्स नहीं भी होते हैं तो भी आप खुश रह सकते हो. आपको ये सीखना था कि एक बहुत ही डल बोरिंग जॉब में जाके भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो विथ योर इनर गुडनेस, विथ योर इनर क्वालिटीज. मे बी दिस वाज द लाइफ लेसन दैट यू केम टू लर्न. और अगर आप इसको हर टाइम रेजिस्ट करते रहते हो तो क्या कर रहे हो? यू आर मूविंग अगेंस्ट योर लाइफ पाथ. यू आर नॉट मूविंग विथ दिस लाइफ पाथ. तो अगर इफ यू आर ऑलवेज रेजिस्टिंग, वी कैन नॉट ग्रो. तो ग्रोथ के लिए फर्स्ट बेसिक थिंग इज सरेंडर. सेकेंड इज ग्रेटिट्यूड. व्हाट इज दिस ग्रेटिट्यूड? हमारे लाइफ में हमेशा एवरी मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि अच्छा है. इट मे बी जस्ट दैट वी आर ब्रीथिंग डीपली, we don't have a chest congestion, we don't have COVID. Thousands of people are now suffering from COVID. It is a thing to be thankful that we are free of any disease. कि हमारे पास कोई डिजीज नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी अड़चन नहीं है जिसके लिए हमको बहुत कुछ सफर करना पड़ रहा है. That is gratitude enough. Every morning you wake up with a healthy body, with no fever, with no stomach ache, with no diarrhea, with no diabetes. We don't appreciate that part of us. हमारे पास डायबिटीज है तो हम कोसते रहते हैं कि मेरे पास डायबिटीज है, आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज. हम ये नहीं बोलते आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम एज्मा. मेरे पास ये डिजीज नहीं है, आई हैव ओनली डायबिटीज. मैं अपने हेल्थ को अगर रेगुलेट कर लूंगी, आई विल बी फाइन. हम ऐसा नहीं बोलते हैं बिकॉज हमारे ये हैबिट बन गया है कि वी रेजिस्ट एवरीथिंग. We can accept diabetes with a joy, and we can accept it. Why?
बिकॉज डायबिटीज क्या बात है हमारे लाइफ में, जब हमारे लाइफ में कहीं पे मिठास नहीं होती है, जब हमारे लाइफ में कहीं पे फ्रस्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है. If you really talk to people who have diabetes, you will understand that somewhere they are frustrated, somewhere they feel stuck, somewhere they feel that life is not moving forward, life is not beautiful, life is not sweet. That is why they have incurred diabetes. और आप अगर उस लाइफ पाथ को चेंज कर लेते हो, आप उस एक्सेप्टेंस को चेंज कर लेते हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हो, आप सिचुएशन में फ्रस्ट्रेटेड नहीं होते हो, वी अंडरस्टैंड दैट इसी सिचुएशन में मेरे को खुश रहना है, इसी सिचुएशन को मेरे को एक्सेप्ट करना है. यू आर इन ग्रेटिट्यूड फॉर द सिचुएशन दैट यू आर इन. जो भी है आपके लाइफ में, कोई अच्छा रिलेशनशिप है, आपके माँ के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आपके पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आपके वाइफ या हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, आपके सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, कोई भी एक कुछ तो अच्छा होता है. अगर कुछ भी अच्छा नहीं हो तो एक अच्छा फ्रेंड रहता है जिंदगी, रहता है सबके लाइफ में, कुछ ना कुछ रहता है. एक स्टेज था मेरे लाइफ में जब कुछ भी अच्छा नहीं था, बट आई हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद माय मेड. पीपल विल से ये क्या चीज है, but the maid is the person who's coming to you every day. If you don't have a good relationship with that person, you may be in a very bitter state of mind. So that is also something to be very grateful for, that you have one relationship in your life which is very beautiful. The moment we start accepting whatever we have with gratitude, it may be a physical body, it may be your thought pattern, you may be very intelligent, you may be a very talented person, creative person. अब जैसे अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपने आप को बिलीव करना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप के लिए रिजॉइस करना स्टार्ट कर देते हो, अपने आप को सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देते हो, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ फुल्ली एंड कंप्लीटली. और जो भी आपके अंदर है कि जो कि आपको लगता है कि अच्छा नहीं है, मैंने जैसे आपको बोला ना, वो जो भी चीज आपके अंदर अच्छा नहीं है, इट मस्ट हैव बीन ब्रॉट टू यू टू टीच यू अ सोल लेसन. जो हम सीखने यहाँ पे अर्थ में आए. अर्थ इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट स्कूल, और हम सब यहाँ ग्रेजुएशन करने आए. वी हैव चोजन वेरी टफ पेपर्स टू ग्रेजुएट. वो जो चैलेंजेस हमारे लाइफ में है ना, एक एक पेपर है, जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ते हैं. Every challenge is a tough paper that we have come to accept and come to understand and come to grips with. जैसे ही हम अपने लाइफ के हर चैलेंज को समझ लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे पढ़े चले जाते हैं, उससे ऊपर चले जाते हैं, we have mastered a soul ability, we have mastered our soul purpose, we have mastered our spiritual growth. हम इसीलिए आते हैं. हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं, हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमको कितने लोग जानते हैं, हम इसलिए नहीं आते हैं कि हमारे लुक्स कितने अच्छे हैं, हमारे टैलेंट्स कितने अच्छे हैं, हमारे कितना लग्जरियस हाउस है. दिस इज नॉट वी कम फॉर. वी कम टू handle our soul gifts, we come to handle our soul journey, we come to handle our soul purpose. वही हमारी मकसद होती है, to be a strong spiritual aspirant who will learn all the soul lessons that we have come to learn for. और जैसे जैसे हम हमें एक्सेप्टेंस बढ़ा देते हैं, हमारी लाइफ में क्या होता है, we become a living example of what a soul should be. जैसे जैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी हर कमियों के साथ, अपनी हर बुराइयों के साथ. सपोज हमारे में बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन है, हम कुछ काम करना स्टार्ट करना चाहते हैं, पर हमेशा उसको अवॉइड करते हैं, नहीं कल करेंगे, नहीं परसों करेंगे. हमारे में होती है, हमारे में लेजीनेस होती है कि हम नींद से उठ नहीं पाते हैं. हम अगर अपने आप को कोसना बंद कर दे कि हमारे में लेजीनेस है, हमारे में ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, हमारे में ये एंगर है, बहुत ज्यादा एंगर है, हम बात बात भड़क जाते हैं. हम अगर इन चीजों को एक्सेप्ट कर ले कि दिस इज अ पार्ट ऑफ मी विच इज नॉट अ बिग पार्ट ऑफ मी, इट इज द स्मॉल पार्ट ऑफ मी, जिसको अगर साथ रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो हम धीरे धीरे स्मॉल पार्ट ऑफ मी को हटाते हैं और बिग पार्ट ऑफ मी को अंदर लाते हैं. बिग पार्ट ऑफ मी कौन है? The person is always accepting oneself. The person is always accepting the world. The person is always in gratitude, in love, in compassion, in joy. आप कुछ भी काम करो जिंदगी में, if you are in gratitude, if you are full of forgiveness to others, जिन्होंने जो भी आपके साथ बिहेव किया है, that is their journey. हम क्यों इस लफड़े में पड़े?
हम क्यों उनका दिया हुआ पेन को कैरी करके अपने दिमाग को, अपने बॉडी को, अपने सोल को हार्म करें? When we carry pain, when we carry grudges, we are harming our souls, we are harming our heart center, we are harming our heart chakra, जिसके एक्सपांशन के बिना आप 5D तक पहुंच ही नहीं सकते, आपका सोल ग्रोथ हो ही नहीं सकता. So if we start forgiving others, if we start being in gratitude, if we start being in love for everyone, आपका लाइफ चेंज हो जाता है. आपके लाइफ में ऐसे अजीब अजीब चीजें होने लगती है जैसा मिराकुलस. आपको पैसा चाहिए, पैसा कहीं से भी आ जाता है. आई रिमेम्बर अ पर्टिकुलर मंथ और मेरा बहुत खर्चा हुआ था. आई डिडंट हैव द मनी टू गो थ्रू द मंथ. मेरे को जैसे ही वो सैलरी मिली ना, आई वाज डन. आई गॉट ऑलमोस्ट 3 times माय सैलरी एंड आई वाज इन अ, मेरे को लगा कि किसी और की सैलरी मेरे को दे दी गई है. आई रैन टू द ओएस डिपार्टमेंट कि आप लोग क्या कर रहे हो, ये क्या सैलरी दे दिया मेरे को. तो उन्होंने क्या बोला मालूम? 2.5 साल से हमने आपको एक चीज नहीं दिया, आपने देखा तक नहीं. तो वो सब हमने विथ एरियर्स एंड इंटरेस्ट आपको दिया. Just see, the month I was most in pain financially, the universe provided for me. This is the way miracles happen. When I want to go somewhere, suppose मेरे को जाना है, सब जगह पे बंद है, कर्फ्यू है, मेरे को ठीक गाड़ी मिल जाएगी, मेरे को ठीक रात के 2:30 बजे भी कुछ मिल जाएगी. क्यों? Because I am in acceptance of what I have come to learn. I am in gratitude of what the universe has given me. I am in love for the fellow human beings. I am in appreciation of the fellow human being. I am in appreciation of life. जैसे जैसे ये आप करते रहते हैं, आप खुद को ही नहीं, आप दूसरों को भी एक ऐसे जगह पे ले जाते हैं कि everyone starts to want to connect to you, everyone wants to be with you. और ये जो आप अपना मार्क छोड़ना चाहते हैं, ये ऑटोमेटिक छूट रह जाती है. You automatic make a mark on the world. You automatic leave a part behind. क्यों? Because when you start living totally in your completeness as the god or goddesses that you are, आप बोलेंगे कि ये क्या बोल रही है. Yes, we all are gods and goddesses reincarnated. क्योंकि आप तो एक बात सोचिए ना, in the beginning there were only the gods and goddesses as we know in India, Trinity, Lord Vishnu, Brahma and Shiva. If everything came from them, we also came from them. So we are a part of the God. So if we are a part of the God, we all have the godly qualities inside us. तो हम जब अर्थ पे आते हैं, हमारी ये ड्यूटी रहती है कि अपने अंदर कुरेद के देखें कि हमारी ये गॉडली क्वालिटीज कहाँ छिप गई है, क्यों छिप गई है. मोस्टली ये छिप जाती है क्योंकि अपने आप को हम एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ और चीजों में इतने उलझे रहते हैं कि अपनी क्वालिटीज को बाहर ही नहीं निकालते हैं. तो इस क्वालिटीज को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए हमको एक्सेप्टेंस, सरेंडर, ग्रैटिट्यूड, लव and stop being molded by society's conditionings, belief systems. ये जो हमारे अंदर बचपन से इंग्रेन कर देते हैं ना कि सिचुएशंस शुड बी लाइक दिस. ये सिचुएशंस वैसे नहीं होते. सिचुएशंस वैसे ही होते हैं जैसे हमने चूज करके आए हैं. क्यों आए हैं? बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ आवर सोल ग्रोथ. आवर सोल ग्रोथ will provide us with situations, with challenges, which will make us learn something which we have not mastered in our earlier lives. So हम इस लाइफ में वैसे क्वालिटीज को मास्टर करने आए हैं जो हम पहले मास्टर नहीं किए थे. तो उस तरह की सिचुएशंस हमारे लाइफ में रिपीट करते रहेंगे एज अ पैटर्न, जब तक हम वो चीज नहीं सीख लेंगे जिससे हम उस नेक्स्ट लेवल पे जा सकते. So this is, my dear friends, acceptance. Acceptance which can really give you peace. Acceptance आपको पीस देगा सबसे पहले, आपको खुशी देगी, जॉय देगा, हैप्पीनेस देगा, आपके जिंदगी में एक बदलाव ले आएगा क्योंकि आपको समझ में आएगी कि what we are doing is something which is against what we have come to learn. हम हमेशा रेजिस्ट करते रहते हैं अपने सिचुएशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने सब कुछ को. अगर इसको रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं, अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने आप को, तब क्या होता है, वी कैन मूव टू द नेक्स्ट स्टेप. क्योंकि जैसे हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारे में एक खुशी आ जाती है, एक ग्रेटिट्यूड आ जाती है. वी बीइंग स्टार्ट बीइंग इन द फ्लो स्टेट. और ये फ्लो स्टेट क्या होती है? ये फ्लो स्टेट इज द स्टेट इन विच वी अट्रैक्ट द थिंग्स दैट वी वांट.
when we are in total gratitude, आपने law of attraction बहुत लोगों ने पढ़ा है. Law of attraction tells you that you have to be in a certain state to attract certain things in your life. What is this state? This is the state of total acceptance, total joy. When we are in a total mood of joy, आप देखिएगा कि आप जब खुश रहते हैं तब आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. You are not in pain because आपको लगता है कि ये जो भी बीमारी आपके अंदर है वो आपको उतनी पेन नहीं दे रही है, इतनी पीड़ा नहीं दे रही है जितनी कि आपकी खुशी आपको जॉय दे रही है. So if you are in a mental state of joy, you can transcend your physical limitations, mental limitations, emotional limitations. तो हम अगर हमेशा खुश रहते हैं, एक्सेप्टेंस मोड में रहते हैं, ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं, लव के मोड में रहते हैं, तो हमारी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, इतनी एक्सपेंसिव हो जाती है कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लो, जिसको मास्टर्स बोलते हैं. उस स्टेट ऑफ फ्लो में क्या होती है, आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. आप जो भी चाहते हैं वो आपके पास आ जाता है, क्योंकि वी आर नॉट रेजिस्टिंग, you are not fighting against life. When you are flowing with life, life loves to give you things that you want to be given. So on this full moon day, जिस दिन की सत्यनारायण की पूजा होती है, जिस दिन की हमारे हायर सेल्फ की पूजा होती है, I would request all of you to sit with yourself and accept yourself completely. अपने आप को टोटली एक्सेप्ट कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स को टोटली एक्सेप्ट कीजिए. आपके लाइफ में जिस भी स्टेट में है, आपका जो भी डिग्री है, जितना भी आपको नॉलेज है, उसको एक्सेप्ट कीजिए. हमेशा ये मत सोचिए कि मेरे पास अगर वो नॉलेज होती, मेरे पास अगर वो टीचर होता, मेरे पास अगर वो सिचुएशन होता. ऐसा सोच के कुछ मिलने वाला नहीं है. इट विल गिव यू ओनली पेन, इट विल गिव यू ओनली सॉरो, इट विल गिव यू ओनली डिप्रेशन. इस स्टेट में नहीं जाके एक्सेप्ट वॉट एवर आई हैव. दिस इज द डिग्री दैट आई हैव, दिस इज द फाइनेंशियल लेवल दैट आई हैव, दिस इज द रिलेशनशिप्स दैट आई हैव. अब यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है. इफ यू एक्सेप्ट दिस थिंग्स, एक्सेप्ट योरसेल्फ कंप्लीटली, तो क्या होता है, आप खुश हो जाते हो, आप हैप्पी हो जाते हो, और हैप्पी स्टेट में आप अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हो एवरीथिंग दैट यू वांट. एंड यू देन स्टार्ट लिविंग योर हायर सेल्फ, your higher self, the God part of you, the God or Goddess part of you. You start living that part of you. That is true acceptance. That is truly living a life of spirituality. So, my dear friends, we start with a meditation now. आज की meditation full moon है. It will be supported with the energies of the Mother Moon. It will be supported with the energies of Lord Vishnu and all the gods and goddesses, angelic realms, unicorn energies, dragon energies, galactic masters, star masters. Everyone will be here to support you. Your individual team of light. ये टीम ऑफ लाइफ में हमारे गॉड्स एंड गॉडेसेस भी होते हैं, मास्टर्स भी होते हैं, एंजल्स भी होते हैं, यूनिकॉर्न्स भी होते हैं, ड्रैगन्स भी होते हैं. हमको ये दिखते नहीं है, तो हमको लगता है ये कैसे होते हैं, बट ये सब होते हैं हमारे टीम ऑफ लाइट में. सो एवरी डे व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन, कॉल ऑन योर टीम ऑफ लाइट. अपने हायर सेल्फ को बुलाइए और मेडिटेशन में बैठिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज क्लोज योर आईज and start breathing deeply. Breathe into your heart center. अपने अंदर एक गहरी सांस लीजिए, लंबी गहरी सांस, और लंबी गहरी सांस छोड़िए. हर सांस के साथ आपके अंदर एक ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट बह रही है. With every breath, you are breathing in the beautiful golden light of the Creator, of Lord Vishnu. You are breathing in this beautiful light, the light of the Sudarshan Chakra, the light of transformation. अपने अंदर इस ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट को फैलते हुए देखिए. विथ एवरी ब्रेथ यू आर ब्रीदिंग इन दिस ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. हमेशा मैं इस गोल्डन लाइट को बुलाती हूँ. आप सोचते होंगे क्यों? क्योंकि ये गोल्डन लाइट इज द मोस्ट पावरफुल लाइट, बिकॉज इट इज द लाइट ऑफ द क्रिएटर. एंड व्हेन यू कॉल ऑन दिस लाइट ऑफ द क्रिएटर, इट ट्रांसफॉर्म्स विद इन यू एवरी नेगेटिविटी. जो भी आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपके अंदर से बाहर निकाल देता है. So breathe in this beautiful golden light deep into your heart center and exhale a beautiful golden light from your heart center, which is pulling away everything from your body which is not for your highest good.
लंबी गहरी सांसें लीजिए, लंबी गहरी सांसें छोड़िए. Breathe deeply to the count of 4. Hold the breath for a few seconds and breathe out deeply to the count of 5. हर सांस के साथ आप और भी गहरे, और भी गहरे, और भी गहरे स्टेट में जा रहे हैं. With every breath, you're going deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper into your subconscious state. Breathe deeply. Hold the breath. Pull out everything that is not needed and exhale it. हर सांस के साथ इस गोल्डन लाइट को अपने अंदर, अपने हर सेल में, अपने हर ऑर्गन में, अपने हर डीएनए, आरएनए, अपने हर टिश्यूज में या लिगामेंट्स में फैलते हुए देखिए. और देखिए हर सेल से वो सब को निकालते हुए जो आपके लिए अच्छा नहीं है. और आपके आउट ब्रेथ के साथ वो हर चीज निकलती है. वो आपका बिलीफ सिस्टम हो सकता है, वो आपका थॉट पैटर्न हो सकता है, वो आपका कोई डेंस इमोशन हो सकता है, वो आपका हेट्रेड हो सकता है, वो आपका एंगर हो सकता है. देखिए इस आउट ब्रेथ के साथ वो आपके बॉडी से निकलते हुए. दिस पार्ट ऑफ द मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड. क्योंकि अगर आप अपने आप को उस स्टेट पे नहीं ले जाते हैं जहाँ पे आप टोटली रिलैक्स, टोटली कंफर्टेबल, टोटली इन अ स्टेट ऑफ हाई पावर, तब तक रियल मेडिटेशन हो ही नहीं सकती है. तो कीप ऑन ब्रीदिंग डीपली, कीप ऑन रिलैक्सिंग एंड कीप ऑन रिलीजिंग एवरीथिंग which is not for your highest best. और जैसे जैसे ये गोल्डन लाइट आपके बॉडी पे करती है, आपका हेड, आपका फोरहेड, आपके ईयर्स, आपकी माउथ, आपके थ्रोट, आपका नेक, सब रिलैक्स होने लगता है. Your whole body is relaxing from your head to your forehead to your ears to your nose to your mouth to your jawline to your neck to your throat to your shoulders to your hands to your fingers to your chest to your back. Everything is relaxing. आपके shoulders से, हाथ से, उंगलियों तक, आपके चेस्ट पे, आपके बैक में, हर पार्ट को रिलैक्स करते हुए लाइट नीचे जाती है. आपके सोलर प्लेक्सस एरिया को, जो कि आपके नाभि के 4 इंच ऊपर है, उस एरिया को रिलैक्स करते हुए, आपके नाभि को रिलैक्स करते हुए, आपके पेट के हर मसल को, हर ऑर्गन को रिलैक्स करते हुए नीचे जाती है. ये नीचे जाके आपके थाइस को, आपके नीज को, आपके एंकल्स को, सबको रिलैक्स करते हुए आपके बॉडी से ये लाइट निकलती है. This light is relaxing you, your diaphragm, your stomach, your hips, your thighs, your knees, your calf muscles, your ankles. And it's flowing out of your body, keeping you totally and completely relaxed. And as we sit for this meditation, we're in a state of complete peace, complete relaxation. We have nowhere to go, nothing to do. जैसे जैसे हम इस स्टेट में जाते हैं, हम completely relaxed, completely peaceful, completely शांत हैं. हमको कहीं भी नहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने साथ बैठना है. आज अपने अंदर देखना है. Come, let us connect to us, to our inner part, to our inner being. अपने अंदर कनेक्ट कीजिए, अपने साथ बैठिए, अपने आप को महसूस कीजिए. It is daytime, but Mother Moon is there with us. And we invoke her energies, invoke her healing powers, invoke her light. आइए हम मदर मून को बुलाते हैं, उनकी एनर्जीज को, उनके लाइट को, उनकी ऊर्जा को हमारे शरीर के अंदर बुलाते हैं. As the light of the mother moon enters us, as the light of this beautiful moon, this full moon, this Purnima enters us,
enters every cell of our body, every part of our body. ये हर कोने कोने में ये लाइट फैल जाती है मदर मून की, और जैसे जैसे ये हमारे अंदर फैलती रहती है, हम महसूस करते हैं कि ये टटोल के निकाल रही है हमारे अंदर से हर दर्द को, हर पेन को, हर फ्रस्ट्रेशन को. This beautiful light of the mother moon is pulling out from every cell all the suppressed emotions, all the suppressed feelings, all the suppressed frustration, all the suppressed relationships that we have held within us and which we are not ready to let go. As the energies of Mother Moon flow inside you, see all these memories, these emotions, the situation surface before your eyes. फील कीजिए अपने हर उस इंसिडेंट को जो आप भूल नहीं पाते हैं, हर एक उस रिलेशनशिप को जिसने आपको दर्द दिया है, हर एक पेन को जो आपके अंदर बसा हुआ है. देखिए उसको. मदर मून की एनर्जीज में वो आज ऊपर आ गई है, वो बाहर आ गई है निकलने के लिए, रिलीज होने के लिए. उसको देखिए, उसको नमन कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए. बोलिए कि आई थैंक यू. Thank the energies, thank the feelings, thank the relationship, thank the pain. उसको हाथ जोड़ के नमन कीजिए, थैंक यू बोलिए. बोलिए आई थैंक यू फॉर ऑल द लेसन्स दैट यू हैव taught me. I thank you for the part you played in my soul growth. I thank you for all the qualities you brought in me. Because without you, I would not have been what I am today. अपने उस सब पेन्स को, अपने उस सारे रिलेशनशिप्स को, अपने उस सारे टूटे हुए गम को, अपने अंदर के वो हर पेन को धन्यवाद कीजिए. बोलिए कि आज आप नहीं होते तो मैं आज इस जगह पे नहीं होती. आपने जो भी मेरे को पेन दिया है, जो भी मेरे को सीख दी है, जो भी मेरे को दर्द दिया है, इसने हेल्प किया है मेरे को आगे बढ़ने में, मेरे को अपने अंदर की हर स्ट्रेंथ को पहचानने में, मेरे अंदर की हर क्वालिटी को पहचानने में कि मैं आगे बढ़ सकूं. देखिए अपने अंदर के उस हर पेन को, और इस मदर मून के लाइट में let it be healed, rinsed and cleansed. Just see all the pain, the frustration, the emotional trauma that you have hidden inside you. Let the energies of the mother moon flow through these traumas, through these energies, through this situation, and see them lighten up. Let every situation be diffused with the light of the mother moon. Let every situation become transparent, and let every situation dissolve in the light of the mother moon. Give all this pain, all these relationships, all these traumas to mother moon. Give it to her. She will release it for you. She will pull it out from you, from your heart, from your emotions, from your physical body, mental body, emotional body, wherever you have stored these emotions. Just give it to mother moon. She will release it for you. She will release it for you. She will release it for you. मदर मून को दे दीजिए अपने हर दर्द को, अपने हर पेन को उनके हाथों में सौंप दीजिए. वो आज इसको हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से बाहर लेके चली जाएंगी, डिजॉल्व कर देंगी अपने लाइट से, अपने हीलिंग से. जस्ट फील हर एनर्जीज फ्लो थ्रू यू. जस्ट फील द एनर्जीज ऑफ द मदर मून dissolving every part of you, every emotion, every pain, every trauma that is not your own, that you have accumulated because you could not accept yourself, the situation, the person. जैसे जैसे आप एक्सेप्टेंस की भावना अपने अंदर लाते हैं, आपको समझ में आता है कि कहीं पे आपने एक्सेप्ट नहीं किया था कि लोग ऐसे भी हो सकते हैं, सिचुएशंस ऐसे भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स ऐसे भी हो सकते हैं. जैसे जैसे आप इस चीज को अपने अंदर से रिलीज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये ऐसा भी हो सकता है,
मेरी कहाँ पे ये मेरे को ये कहीं पे लिखा नहीं है कि आई कैन ऑलवेज गेट द बेस्ट। जहाँ पे मेरे को बेस्ट नहीं मिला है, इसके पीछे भी कोई रीजन है, इसके पीछे भी मेरी कोई सोल ग्रोथ है। सो मैं आज इन सब को मदर मून की एनर्जीज में छोड़ती हूँ। Let her carry away all my pain, all my frustration, all my sorrow, all my traumas that I've hidden deep inside my physical body, mental body, emotional body, as I resist life, as I resist myself, as I resist my relationships, as I resist my situation, my financial situation, my work situation, my study situation, as I resist my family situation. अपने अंदर से इस हर चीज को बाहर जाते हुए देखिए, हर चीज को फील कीजिए आपके अंदर से बाहर मूव करते हुए। जैसे जैसे आपके अंदर से ये ट्रॉमा बाहर जाती है, आप अपने आप को और भी हल्का महसूस करते हो। जैसे जैसे आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो, अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हो, अपने हर बीते हुए रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करते हो, अपने हर ट्रॉमा को एक्सेप्ट करते हो, यू आर बिकमिंग अ न्यू यू, you are becoming transformed and changed. As you accept these things in your past, as you accept your past, your relationships, whatever qualities you could have, whatever things you had in your past that you cannot accept in yourself, as you accept this, you release everything that is not for your highest good and which is preventing you from moving forward in life. Just let go, let go, let go. Let go in these powerful energies of the full moon. She is here to release everything that is not serving you. इस पूर्णिमा के अवसर पर, इस पावन अवसर पर अपने हर उस ऊर्जा को छोड़िए जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपको दर्द देता है, जो आपको पेन देता है, जो आपके अंदर वो हर ट्रॉमा को ले आता है जो आपके ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है। इस मेडिटेशन में आज हम उस सब चीजों को छोड़ते हैं जिसको हमने पकड़ के रखा था, जिनके लिए कहीं हमारे अंदर कोई रेजिस्टेंस थी, जहाँ पे हमको कहीं लगता था कि ये चीज हमको नहीं सहना है, ये चीज हमारे साथ अन्याय हुई है, वो हर चीज को हम छोड़ते हैं। क्योंकि ये हर चिंता, ये हर सोच के पीछे कोई कंडीशनिंग है, कोई बिलीफ सिस्टम है, कोई नॉन एक्सेप्टेंस पार्ट ऑफ मी है जो हमको नहीं कैरी करना है। We release all those non-acceptance from me. We release all those emotions, traumas, relationships which have not seemed right enough, correct enough, true enough, because we tried to put them in the conditioned beliefs that we are carrying. We release all those traumas and we are cleansed and rinsed in this beautiful light, the healing light of the Mother Moon. मदर मून के इस ब्यूटीफुल लाइट में हमारी हर ऊर्जा, हर सेल रिजुविनेट हो जाता है, रिबिल्ड हो जाता है, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है। वी आर नाउ फुल्ली एंड कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ न्यू मी, इनटू अ न्यू यू। Every part of you is filled with love, filled with gratitude, filled with joy, filled with acceptance, filled with happiness, filled with abundance. Feel yourself abundant. अपने आप को हर स्थिति में abundant feel कीजिए, अपने आप को loved feel कीजिए, अपने आप को honored feel कीजिए. Because my dear ones, you're always honored, you're always loved, you are always accepted by the divine masters. ये हम ही हैं कि खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने आप में कमियां ढूंढने रहते हैं, अपने आप में दर्द ढूंढते रहते हैं, अपने आप में कुछ ना कुछ अड़चन ढूंढते रहते हैं. Accept yourself fully in the light of the mother moon, and when you are ready, you can come back to yourself, open your eyes, and if you would like to share
experiences, would like to ask something, share something, we're ready to do so. Thank you, my dear friends. Thank you for being on this beautiful journey with me. Anyone would like to share anything? नमस्ते अथर्वा जी, नमस्ते जी। क्या हाल है?